السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹوری چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریٹ ہال، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت، آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیجز۔ کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، 7 ٹومس روڈ، beside الصبا ہوٹل، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈز 7 ٹومس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ارادہ آپ کا، خدمت ہماری۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ پیش کرتے ہیں عمرہ جانے والے خواہش مند افراد کے لیے سنہرا موقع۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے عمرہ بکنگ پر 5,000 کا ڈسکاؤنٹ پائیے۔ ہر ماہ 4 گروپس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قریب ترین رہائش، تینوں ٹائم حیدرآبادی لذیذ کھانا، ڈائریکٹ فلائٹ، AC ٹرانسپورٹ کی سہولت اور 5 لیٹر زمزم۔ بکنگ تیزی سے جاری ہے تو دیر کس بات کی، فوری ملاقات کریں۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ، اپوزٹ الصبا ہوٹل، وجے نگر کالونی، کراس روڈ، حیدرآباد۔ ریاست بھر میں 6 لاکھ سے زائد خاندانوں کو راشن کارڈ کا مستحق قرار دیا گیا۔ راشن کارڈ جاری کرنے کا عمل مستقل، آخری مستحق تک راشن کارڈ جاری کیا جائے گا، اتم کمار ریڈی کا بیان۔ نئے اسکیموں کی عمل آوری سے زیادہ کٹوتی پر حکومت توجہ دے رہی ہے۔ راشن کارڈ کی اجرائی سے متعلق عوام پریشان ہیں، ہریش راؤ کی پریس کانفرنس۔ حبشی گڑھا میں ہورڈنگ نکالنے کے دوران برقی شاک لگنے سے 2 افراد برسر موقع فوت، دردناک منظر۔ اور گانجے کی منتقلی کے خلاف ریلوے پولیس کا کریک ڈاؤن، 18 کلو گانجا ضبط۔ کاچی گوڑا ریلوے پولیس نے بھی 80 لاکھ روپے مالیتی لیپ ٹاپ کے سارق کو کیا گرفتار۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہفتے کو اپنے سنگاپور دورے کے دوسرے دن وزیر ماحولیات گریس فوہین کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران ماحولیات میں تعاون کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔
वजीर आला के हमराह रियासती वजीर श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। सरमायाकारी से जुड़े उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना में कई शोबों में सरमायाकारी के लिए मिसाली मौके हैं, जिनमें शहरी मनसूबाबंदी और बुनियादी ढांचा, पानी का इंतजाम, खेल, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी शामिल हैं। वजीर माहौलियात ग्रेस फोयान ने वजीर आला को तयक़ुन दिलाया कि राइजिंग तेलंगाना के जो मकासद हैं उसको कामयाब बनाने के लिए तेलंगाना के साथ शिराकत की दावत पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर ज़ीरो फ्यूचर सिटी, मूसा नदी की तरक्की के प्रोजेक्ट, पानी का इंतज़ाम और तेलंगाना की पायदार मंसूबों के बारे में ख़ास तौर पर ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर माहौलियात ने मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। सिंगापुर के दौरे के दौरान वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग के वफ़द ने सिंगापुर के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन SSIA के साथ गोलमेज बातचीत की। इस बातचीत में कई हाई प्रोफाइल सेमीकंडक्टर की सनतों ने हिस्सा लिया। श्रीधर बाबू से तेलंगाना राइजिंग के नुमायां खुसूसियात पर रोशनी डालते हुए आलमी सरमायाकारों के मौक़े की तफसीलात पेश की और सिंगापुर के सनतकारों को रियासत में भारी सरमायाकारी करने की दावत दी। SSIA ने तेलंगाना की दावतनामे पर मुस्बत जवाब दिया। मौक़े तलाश करने के लिए इस साल आखिर में एक बड़ी टीम हैदराबाद का दौरा करने वाली है। रियासत भर में 6,68,000 खानदानों को नए राशन कार्ड्स का मुस्तहक करार दिया गया है। सिविल सप्लाईज महकमे ने इब्तदाई तौर पर मुस्तहक अफराद की निशानदही की है। सिविल सप्लाईज महकमे ने यह फहरिस्त 33 अजला को रवाना कर दी है। 20 जनवरी तक 24 जनवरी तक इन 4 दिनों में रियासत भर में ग्राम सभा मुनक्किद करते हुए एतराज़ात लिए जाएंगे। इसके बाद फहरिस्त को खतियत दी जाएगी। ज़िला कलेक्टर के पास जो फहरिस्त जारी होगी, इसके मुताबिक सिविल सप्लाईज की जानिब से कार्ड्स को मंजूर किया जाएगा। 26 जनवरी को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इब्तदाई मुस्तहक अफराद की निशानदही में हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 83,285 कार्ड्स और सबसे कम वनपर्ती में 6,647 खानदानों को कार्ड्स दिए जाएंगे। सिविल सप्लाईज के मुताबिक जारी किए जाने वाले राशन कार्ड पर वजीर आला रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी के दस्तखत होंगे। चंद दिनों के बाद पुराने राशन कार्ड की जगह पर नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड जारी करने का मुसलसिल अमल है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि रियासत में मौजूद हर मुस्तहक फर्द को राशन कार्ड मिलने तक ये अमल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड की फहरिस्त में नाम न होने पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी, सोशो इकनॉमिक सर्वे, पुराने राशन कार्ड की बुनियाद पर नामों का इंदराज किया गया है। अगर किसी का नाम न हो तो ग्राम सभा में दोबारा दरख्वास्त दाखिल करें। दरख्वास्त देने वाले हर मुस्तहक फ़र्द को राशन कार्ड जारी करेंगे। रियासत में हर मुस्तहक फ़र्द को राशन कार्ड फराहम करना हुकूमत का मकसद है। BRS पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि 26 जनवरी से शुरू होने वाली स्कीमों पर अमलावरी के बजाय कटौती पर तवज्जो दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 6 गारंटियों की महालक्ष्मी स्कीम पर अब तक अमलावरी नहीं हुई। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर शुरू करने वाले प्रोग्राम में अवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड्स के लिए ज़ात पात की मरदमशुमारी सर्वे के मुताबिक फहरिस्त तैयार की गई है। कई लाख अफराद ने मी सेवा में ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की हैं। प्रजापालना के वक्त दरख्वास्तें दाखिल की गईं। इन दरख्वास्तों का जायज़ा क्यों नहीं लिया गया? अवाम परेशान हैं। BRS हुकूमत में 6,47,479 नए राशन कार्ड्स उन्होंने कहा कि जारी किए गए थे। तेलंगाना कौंसिल के चीफ विप महिंदर रेड्डी ने कहा कि KTR झूठ बोलना छोड़ दें। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। 26 जनवरी को किसानों के खातों में पहले मरहले के 6,000 रुपये जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक साल में 54,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए तेलंगाना हुकूमत ने खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि यौम जमहूरिया के मौके पर मुस्तहिक अफराद को नए राशन कार्ड जारी करेंगे। हर साल 4,50,000 मुस्तहिक अफराद में इंदिरम्मा मकानात तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि KTR अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ حکومت نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے گی اور اس پر عمل کر کے بتائے گی۔ BRS پارٹی کے سابق وزیر سرینیواس گوڑ نے کہا کہ کانگریس قائدین کینالوں کی کھدائی کرنے کے بجائے گڑھے مردے اکھاڑ رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برجیش کمار ٹریبونل کے تازہ عبوری احکامات KCR کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اس کے باوجود بھی KCR پر تنقید کرتے ہوئے عوام کے سامنے مذاق بن رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے عوام سے جو وعدے کیے ہیں اس پر توجہ مرکوز کریں۔ انہوں نے کہا کہ پالمور رنگا ریڈی پروجیکٹس کو قومی درجہ دینے کا مرکز سے مطالبہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی BRS پر تنقید کرنے کے بجائے زیر التوا پروجیکٹس پر توجہ دیں۔ سرینیواس گوڑ نے کہا کہ پانی کے معاملے پر تمل ناڈو کی طرح سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر جدوجہد کریں۔ کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی T رام موہن ریڈی نے KTR سے چیلنج کیا کہ ان کے اسمبلی حلقے پرگی میں کس منڈل کو کتنے کروڑ روپے کی قرض معافی ہوئی ہے، اس کے لیے مباحث کے لیے آگے آئیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 21,000 کروڑ روپے قرض معافی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مراحت بھی دیے جا رہے ہیں۔ گرام سبھا منعقد کرتے ہوئے نئے راشن کارڈ، اندرما مکانات کے مستحق افراد کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ریاست کو قرض لا کر دیوالیہ نکال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رنگا ریڈی ضلع کو KTR نے برباد کر دیا ہے۔ ہر اسمبلی حلقے میں 150 سے 300 کروڑ روپے کی رقم جاری کی گئی ہے۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ NT راما راؤ کو ان کی برسی پر خراج پیش کیا جا رہا ہے۔ ہفتے کو NT راما راؤ کی سمادھی واقع NTR گھاٹ پر NT راما راؤ کے فرزند بالا کرشنا، بیوہ لکشمی پاروتی، پوتے جونیئر NTR اور دیگر افراد خاندان نے پھول ڈالے۔ NTR کی دختر بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ اس موقع پر آندھرا کے MLA بالا کرشنا نے اپنے والد کی عوام اور فلم انڈسٹری کے لیے کی گئی خدمات کو خراج پیش کیا۔ آندھرا پردیش میں تلگو دیشم پارٹی کی طرف سے سابق وزیر اعلیٰ اور بانی تلگو دیشم NT راما راؤ کو ان کی برسی پر خراج پیش کیا گیا۔ آندھرا پردیش کے وزیر نارا لوکیش اور ان کی والدہ نارا بھونیشوری نے NTR گھاٹ پہنچ کر سابق وزیر اعلیٰ کو خراج پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لوکیش نے کہا کہ NTR نے متحدہ آندھرا پردیش میں سیاسی انقلاب برپا کیا تھا، غریبوں کے لیے کئی اصلاحات کو متعارف کروایا اور سب سے پہلے 2 روپے کلو چاول اور خواتین کو جائیداد میں مساوی حق کا سہرا بھی NT راما راؤ کو جاتا ہے۔ دوسری طرف اننتپور کے ضلع رائے درگم میں تلگو دیشم MLA کے سرینیواسلو کی قیادت میں خون کا عطیہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع میں تلگو دیشم پارٹی کی طرف سے مختلف پروگرامز بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر زونل کمشنر GHMC T وینکنا کے ہمراہ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں بات کی اور ترقیاتی کاموں کو جلد پورا کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر انہوں نے زونل کمشنر کو ایک مکتوب بھی حوالے کیا، جس پر زونل کمشنر نے کہا کہ وہ ترقیاتی کاموں کو ترجیحی بنیاد پر جائزہ لیں گے اور گتےداروں کو ضروری ہدایت دیں گے۔ صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور قائد مقررہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے محکمہ آبرسانی کے CGM ونود بھارگو اور جنرل مینیجر کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ کاموں میں تیزی پیدا کر کے جلد سے جلد کام مکمل کریں، جس پر عہدیداروں نے انہیں تیقن دیا کہ وہ کاموں کو پورا کروائیں گے۔ حیدرآباد میٹرو کے ذریعے ٹرانسپلانٹ کے لیے دل کی منتقلی عمل میں لائی گئی ہے۔ گرین کیریڈور کے ذریعے LB نگر کمس ہاسپٹل سے لکڑی کپل پر واقع گلینٹ ایگل ہاسپٹل کو 13 منٹ میں 13 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا گیا۔ میٹرو کی طرف سے اس کے لیے انتظامات کیے گئے تھے۔ مختلف اسٹیشن سے گزرتے ہوئے 17 جنوری کی رات اسے منتقل کیا گیا۔ ہائیڈرا کمشنر AV رنگناتھ نے قطب اللہ پور جگت گٹا میں گووند راجو سوامی مندر کی اراضیات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے AV رنگناتھ نے بتایا کہ مندر کی اراضی پر جبرن قبضے کی شکایت پر یہ دورہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مندر کی اراضی کا تفصیلی معائنہ کیا گیا ہے، آس پاس کی مندر کی اراضی کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، اراضی پر مکانات بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ مقامی عوام نے بعض سیاسی قائدین کے ناموں کا بھی انکشاف کیا ہے۔
चहारशुंबे को इस सिलसिले में इजलास तलब करते हुए आइंदा की कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अराजियात पर भी जो तामीरात की गई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाइड्रा ने वाज़ेह किया कि पुराने मकानात के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। 84वीं कुल हिंद सनती नुमाइश के पेश नज़र नुमाइश सोसाइटी की जानिब से चलाए जा रहे तालीमी इदारों के तलबा के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स मीट का सिकंदराबाद सरदार पटेल कॉलेज में आगाज हुआ। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नुमाइश सोसाइटी के स्पोर्ट्स कमेटी के एडवाइजर अनिल स्वरूप मिश्रा ने बताया कि सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले 18 कॉलेजेस के तलबा के लिए हर साल गेम्स और स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद अमल में लाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार सरदार पटेल कॉलेज सिकंदराबाद में लड़कों के लिए ये मुकाबले हो रहे हैं और 24 जनवरी को सरोजनी देवी वनिता महाविद्यालय फार्मेसी कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट मुनक्किद होंगे। तलबा के खेल की सलाहियतों को नुमायां और उभारने और उनकी हौसला अफजाई के लिए ये स्पोर्ट्स मीट्स मुनक्किद की जाती हैं। तलबा की तालीमी सलाहियतों के साथ साथ खेल की सलाहियतों को भी उभारने इसका मकसद है। सोसाइटी का मकसद है कि कॉलेजेस के तलबा कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लें और मुल्क और रियासत का नाम रोशन करें। इस टूर्नामेंट से तलबा को काफ़ी हौसला मिलता है। तलबा की बड़ी तादाद ने इस मीट में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नुमाइश गेम्स एंड स्पोर्ट्स सब कमेटी हमारे 18 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए हर साल ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट करते हैं कई डिसिप्लिन्स में। इस बार ये स्पोर्ट्स इवेंट सरदार पटेल कॉलेज में बॉयज़ के लिए हो रहा है और सरोजिनी नायडू वनिता फार्मेसी महाविद्यालय 24 को गर्ल्स के लिए होगा। ये हमारा स्टूडेंट के लिए एक एक्सपोजर के लिए ये स्पोर्ट्स किया जाता है, इसलिए कि जो टैलेंट उनका स्पोर्ट्स में है, एकेडमिक्स के साथ साथ एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना, एक अच्छा ऑलराउंडर बनना और कंट्री के लिए ही शुड प्ले फॉर द कंट्री। दैट इज आवर मेन मोटो टू सी दैट द स्पोर्ट्समैन आर एनकरेज्ड। शहर हैदराबाद की मारूफ शख्सियत मोहम्मद महमूद अली का इंतकाल हो गया है। मरहूम एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी थे। शहर के कदीम फुटबॉल क्लब CCOB की सरपरस्ती किया करते थे और मुल्क के मशहूर फुटबॉल क्लब मोहम्मदन स्पोर्टिंग के लिए भी खेला था। वो शालीबंडह के रुकन बलदिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के वालिद थे। नमाज जनाजा बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद चौक में अदा की जाएगी। कमिश्नर पुलिस सच्चाकुंडा सिदर बाबू ने बढ़ते हुए बैंक डकैती वारदातों के वाक़े की रोकथाम के लिए CCTV कैमरों की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने बैंक के हुकाम को मशवरा दिया है कि वो इस सिलसिले में वक्फे से सिक्योरिटी का जायजा लेते हुए इसे मौसर बनाएं। उन्होंने इस सिलसिले में मैंगलोर और रायपाटी बीदर में पेश आए डकैती के ताज़ा वाक़यात का तस्करा किया। वो नरेडमेट में बैंक के आला ओहदेदारों और स्टाफ के साथ मीटिंग में शिरकत कर रहे थे, जहां जराइम के खिलाफ मौसर इक़दाम करने के अलावा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के उमूर पर की गई मीटिंग में उन्होंने खिताब में कहा कि बैंकिंग सेक्टर एक अहम सतून है जिसमें सोसाइटी और तिजारती और कारोबार मुज़मिर है। उन्होंने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर और इसके आलात को वक्फे से अपडेट किया जाना चाहिए और इस काम के लिए माहिर स्टाफ की ATM के लिए खिदमात लेनी चाहिए। कर्नाटक बीदर हुमनाबाद ताल्लुक़ा के जलासंगी देहात में एक बड़ा गुब्बारा गिरने से सनसनी देखी गई। बताया जाता है कि हफ्ते की सुबह 6 बजे के करीब जलासंगी देहात में एक बड़ा गुब्बारा नीचे गिर पड़ा। इस गुब्बारे के साथ कई आलात भी लगे हुए देखे गए। बैलून के गिरने से गांव के अवाम में तशवीश देखी गई। ताहम बाद में पता चला कि यह गुब्बारा हैदराबाद की TIFR कंपनी का था, जिस पर तजुर्बाती सेटेलाइट थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कंपनी महकमे जौहरी तवानाई के तहत काम करती है। अक्सर इस कंपनी के गुब्बारे तजुर्बे के लिए छोड़े जाते हैं। इत्तला मिली है कि इस गुब्बारे को हैदराबाद से रात जुमे की 10 बजे मौसमियाती मुताले के लिए छोड़ा गया था। इस गुब्बारे की हयात 6 से 7 घंटे बताई गई है। इत्तला मिलते ही हैदराबाद की कंपनी के हुक्काम बीदर के लिए रवाना हो गए हैं। गुब्बारे के साथ एक पम्फिल्ट भी देखा गया है। यह भी इत्तला है कि इस गुब्बारे पर हमेशा पम्फिल्ट रखे जाते हैं ताकि लोग इसे नुकसान न पहुंचाएं। सुबह की अवलीन सातों में गुब्बारे के गिरने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ये दोपहर के बाद गिरता तो नुकसान हो सकता था। हबशीगुड़ा में इमारत से होर्डिंग्स निकालने के दौरान 2 अफराद बरखी शॉक लगने से बरसरे मौका फौत हो गए।
तफसीलात के मुताबिक विजय लक्ष्मी आर्किड के पास चिट फंड कंपनी के होर्डिंग को निकालने के दौरान सूर्यापेट के साकिनान 37 साला बालू और 29 साला मलेश बरखी तार की जद में आ गए और नीचे गिर पड़े। दोनों के जिस्म को आग लगी हुई देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंची। फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब कर लिया गया। बरखी शॉक लगने से दोनों जल रहे थे। फौरी तौर पर उनकी आग बुझाई गई। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुकामी पुलिस तहकीकात कर रही है। रेलवे पुलिस ने 2 मुख्तलिफ केसेस में करीब 18 किलो गांजा और 80 लाख रुपए मालियती लैपटॉप्स बरामद करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने विशाखापट्टनम से शोलापुर को गांजा मुंतकिल किए जाने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया और करीब 4.5 लाख रुपए मालियती गांजा जब्त करके 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक साथी राजा फरार हो गया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन आपस में दोस्त हैं और वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रेलवे पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से ज़ायद 4,44,000 रुपए गांजा जब्त करके मफरूर राजा की तलाश शुरू कर दी है। एक और वाक़े में काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने R&F पुलिस के ताउन से एक सारिख DK नवीन कुमार को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से लैपटॉप्स और दीगर अशिया जब्त की हैं। उन्होंने बताया कि मुलजिम ट्रेन में सफ़र के दौरान एक मुसाफिर के बैग का सरखा किया, जिसमें लैपटॉप के अलावा दीगर अशिया भी थीं। उन्होंने बताया कि मुलजिम गांधी नगर और रियासत कर्नाटक का रहने वाला है। रेलवे पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मसरूक़ अशिया बरामद करके उसके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। तेलंगाना के सूर्यापेट की हैदराबाद विजयवाड़ा 65 शाहराह पर 2 खानगी ट्रैवल बस के तसादुम में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया जाता है कि बसेस गुंटूर से हैदराबाद की तरफ आ रही थीं। महलूकीन की शनाख्त गुंटूर के साकिनान वासुसाई और रसूल की हैसियत से की गई है। कुछ लोग जख्मी भी बताए गए हैं। हादसे के बाद बस में आग लगने की भी तल्ला मिली है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। कुल हिंद सनती नुमाइश में हर दिन अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। इस दफ़ा नुमाइश में गुज़िश्ता साल से ज़्यादा शायकीन शिरकत कर रहे हैं। इस दफ़ा ज़्यादा गेम्स की वैराइटीज़ भी देखे गए हैं, जो मुशाहिदीन की तादाद में इजाफे का सबब बन रहे हैं। इसके अलावा खाने पीने की अशिया का कारोबार भी बढ़ गया है। बच्चों की दिलचस्पी का ख्याल रखते हुए गुज़िश्ता साल से ज़्यादा गेम्स को मुतारिफ करवाया गया है, जिसकी तरफ छोटे बच्चे ज़्यादा माइल हो रहे हैं। एग्जीबिशन आज से नहीं, हम लोग तो जब छोटे थे तभी से आ रहे हैं, पर दिन पर दिन ये डेवलप हो रही है और बहुत सुंदर एग्जीबिशन है। इस बार तो ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छे से बनाया और नए नए झूले, बच्चों के राइड्स और काफी कुछ इम्प्रूव हुआ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। కొంచెం ఎర్లీగా వచ్చి ఎర్లీగా క్లోజ్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం, కానీ వచ్చింది లేడీస్ తో కాబట్టి స్పెషల్గా లేడీస్ తో వచ్చిన కాబట్టి ఇక సాయంత్రం ఎర్లీగా వచ్చినా కూడా లేట్ నైట్ అవుతుంది. వచ్చినప్పటి సంది అబ్బాయిలకైతే ఏం లేవు, మొత్తం ఆడలకే ఉన్నాయి. మొత్తం తిరిగి 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 నాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అండి ఎగ్జిబిషన్ వచ్చాను నేను హైదరాబాద్, ఆయన హైదరాబాద్ పక్క, బట్ చాలా బాగుంటది చూడడానికి, అంత సూపర్ ఉంటది కిరాక్. నేను మా ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చాను ఇక్కడ చూడడానికి, కానీ స్టాల్స్ కానీ ఫుడ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్, ఎగ్జిబిషన్ గేమ్స్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ गुड। थैंक यू। और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल, 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोरी चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 टोम्स रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोरी चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं उम्रा जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 ग्रुप्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, AC ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर ज़मज़म। बुकिंग तेजी से जारी है तो देर किस बात की, फौरी मुलाकात करें। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट अल सबा होटल, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। तेलंगाना राइजिंग के मकासद के लिए मिलकर काम करने सिंगापुर के वजीर का इत्तेफाक। सेमीकंडक्टर्स एसोसिएशन के साथ श्रीधर बाबू की गोल मेज कॉन्फ्रेंस। रियासत भर में 6 लाख से जायद खानदानों को राशन कार्ड का मुस्तहक करार दिया गया। राशन कार्ड जारी करने का अमल मुस्तकिल, आखिरी मुस्तहक तक राशन कार्ड जारी किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। नए स्कीमों की अमलावरी से ज्यादा कटौती पर हुकूमत तवज्जो दे रही है। राशन कार्ड के इजराई से मुताल्लिक अवाम परेशान हैं। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हबशीगुड़ा में होर्डिंग निकालने के दौरान बरकी शॉक लगने से 2 अफराद बरसरे मौका फौत, दर्दनाक मंजर। और गांजे की मुंतकली के खिलाफ रेलवे पुलिस का क्रैकडाउन, 18 किलो गांजा जब्त। कासीगुड़ा रेलवे पुलिस ने भी 80 लाख रुपए मालियती लैपटॉप के सारिक को किया गिरफ्तार। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।